دوستو بہت ہی مزے کی لانگ ویڈیو ایکشن ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ سبیحہ خاتون بولی، کیوں کیا ہے اس کے کپڑوں کو؟ میں نے ہی اسے یہ کپڑے پہننے کے لیے کہا تھا۔ جہانزیب خان بولا، مگر یاسر کو گارڈ کے یونیفارم میں آپ کے ساتھ جانا چاہیے۔ سبیحہ خاتون بولی، بالکل بھی نہیں، شاید تم بھول رہے ہو کہ یاسر ہمارے پاس گارڈ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مہمان کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اور وہ بھی وی آئی پی مہمان کی حیثیت سے۔ میرے خیال میں تمہیں اپنے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ تمہارے یہ الفاظ ہمارے مہمان کی توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں حیرانگی سے سبیحہ خاتون کی باتیں سن رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں یہاں صرف ٹریننگ کے لیے آیا تھا، سبیحہ خاتون کی نوکری کرنے کے لیے نہیں۔ مگر مجھے اس بات کی رتی برابر بھی توقع نہیں تھی کہ ایک تو سبیحہ خاتون جھوٹ بولے گی کہ اس نے مجھے شلوار قمیص پہننے کا کہا تھا، دوسرا مجھے گارڈ کہنے پر سبیحہ خاتون کی جانب سے اس قدر سخت ری ایکشن آئے گا کہ اپنے دیرینہ خاص ساتھی کی بے عزتی کر کے رکھ دے گی، کیونکہ سبیحہ خاتون کے لہجے میں سختی تو میں نے محسوس کی تھی، جس کے نتیجے میں جہانزیب خان جے پتی ہوئے بولا، سوری میم، دراصل میں۔ سبیحہ خاتون جہانزیب خان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا، جو میں نے کہا اس کو ذہن نشین رکھو۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ مجھے یہ بات دہرانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جہانزیب خان بھیگی بلی کی طرح بولا، جی میم، اوکے میم، آئندہ احتیاط کی جائے گی۔ 4 ہی سیکنڈز بعد سبیحہ خاتون جہانزیب خان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا، جو میں نے کہا ہے اس کو ذہن نشین رکھو۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ مجھے یہ بات دہرانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جہانزیب خان بھیگی بلی کی طرح بولا، جی میم، اوکے، آئندہ احتیاط کی جائے گی۔ مجھے بری طرح لگا جب سے میری جہانزیب خان سے ملاقات ہوئی تھی، آج پہلی دفعہ اسے یوں بھیگی بلی بنتے دیکھا تھا، جس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ جہانزیب خان چاہے جتنا بڑا سورما ہے، وہ سبیحہ خاتون کے ماتحت ہے، اس کے اشاروں پر چلنے والی کٹ پتلی ہے۔ اس دوران میں سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہ تو سبیحہ خاتون کی جانب دیکھ رہا تھا اور نہ ہی جہانزیب خان کی طرف، تاکہ دونوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں ان کی باتیں سن کر کوئی ری ایکشن پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں دونوں کی نظروں میں اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ جہاں سبیحہ خاتون میری محسن تھی، وہیں جہانزیب خان بھی میرا استاد تھا، اور صوفی لوگوں کو رہا کروانے میں اس کا جو کردار رہا تھا، اس کی یہ احسان جان دے کر بھی نہیں چکا سکتا تھا، اس لیے میں اس کی دل و جان سے قدر کرتا تھا۔ سبیحہ خاتون کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، گارڈز کو تیار کر دیا گیا ہے؟ جہانزیب خان بولا، جی میم، گاڑی اور گارڈز تیار ہیں۔ سبیحہ خاتون ہم کرتے ہوئے بولی، اوکے، ناشتہ نکل کر لو، پھر ہمیں چلنا ہے۔ جہانزیب خان خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا، جو میرے لیے تھوڑا عجیب بھی تھا، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے سبیحہ خاتون کی طرف سے اچھی خاصی خفگی لگی تھی جب سے میں انڈیا سے واپس آیا تھا، اور ابھی جو میری ٹریننگ چل رہی تھی، اس سب کے دوران میرے اندر یہ تبدیلی بھی آئی تھی کہ میں اب ایک آئی ڈی آفیسر کی طرح کسی سے بھی بات کرتے ہوئے اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھ کر ایک ایک پوائنٹ کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہوئے اس کا اصل پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں سبیحہ خاتون کی تلخ کلامی سے لے کر جہانزیب خان کے ری ایکشن تک کو باریک بینی سے دیکھ رہا تھا، جس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں مجھ پر عیاں ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر میں ہم نے ناشتہ مکمل کیا تو سبیحہ خاتون میری جانب دیکھ کر بولی، بچے نے اپنے مزید سوٹ رکھ لیے ہیں؟ میں نے کہا، جی میم، ہاں، میں نے رکھ لیے ہیں۔ سبیحہ خاتون بولی، اوکے بچے، تم اپنا سامان لے کر نیچے گاڑی تک پہنچ جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ سبیحہ خاتون نے صرف مجھے وہاں سے جانے کا کہا تھا، جس کا مطلب تو میں سمجھ گیا تھا کہ سبیحہ خاتون اکیلے میں جہانزیب خان سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ خیر، مجھے بھی ان کی باتیں سننے میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی، شاید انہوں نے پیچھے کے معاملات بند کرنے کے بارے میں کوئی پرسنل ڈسکشن کرنی ہوگی، اس لیے میں خاموشی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے سے نکل کر میں نیچے کی جانب چلا گیا۔ نیچے والے انکل ڈرائنگ روم سے تو ڈرائنگ روم کے دروازے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ویگو ڈالا گیٹ کی جانب رخ کیے کھڑا تھا، اور گاڑی کے قریب 5 گارڈز مسلح ہو کر الرٹ کھڑے تھے۔ جب میں گاڑی کے پاس پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ 5 گارڈز نے مجھے سلیوٹ کیا، جو میرے لیے بالکل نئی بات تھی، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ سبیحہ خاتون کے گارڈز مجھے سلیوٹ کر کے سلام کر رہے تھے، جبکہ سیدھا کھڑا ڈرائیور نے بھی مجھے سلام کیا۔ میں نے سب کا سلام کا جواب دیتے ہوئے ساتھ میں پکڑا چھوٹا بیگ ڈرائیور کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ بیگ گاڑی میں رکھ دو۔ اتنی دیر میں ملازمہ بیگ لیے آ گئی، ڈرائیور نے وہ بھی گاڑی میں رکھ دی۔
मैं बाहर खड़े होकर सबीहा खातून का इंतजार करते हुए गार्ड्स से गुपशप करने लगा। सबीहा खातून के गार्ड्स के पास जितने भी हथियार पकड़े हुए थे सभी ऑटोमेटिक थे। उन हथियारों जैसा एक हथियार भी मेरी गार्ड्स के पास नहीं था। कुछ ही देर में सबीहा खातून जहाजेब खान के साथ आती दिखाई दी। सबीहा खातून अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई गाड़ी के करीब आई तो जहाजेब खान ने पिछला दरवाज़ा खोला। सबीहा खातून पीछे बैठते हुए मेरी जानिब देखकर बोली, बच्चे तुम भी दूसरी साइड से पीछे मेरे साथ ही बैठ जाओ। ओ मेरे लिए ये भी बहुत बड़े एजाज की बात थी, वरना मैं तो समझ रहा था कि शायद मुझे आगे फ्रंट पर बैठने का कहा जाए। एक गार्ड आगे फ्रंट ड्राइवर के साथ बैठ गया, जबकि मैं और सबीहा खातून पीछे वाली सीटों पर बैठ गए। गाड़ी का पिछला हिस्सा काफी खुला था। पिछली सीटें सोफे नुमा काफी खिली धुली थीं। बाकी के गार्ड्स पीछे डाले में रखी सीटों पर बैठ गए। रुखसत होने तक जहाजेब खान मेरे साथ इसी अंदाज में पेश आया जैसे पहले पेश आता था, वरना मुझे ये डर पैदा हो गया था कि कहीं मेरी वजह से सबीहा खातून से इज्जत होने के बाद वो मुझसे नफरत करने लग जाए। मगर ऐसा कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ। बाहर गाड़ी हवेली से निकली तो बाहर एक और वीगो डाला तैयार था जिसमें गार्ड्स बैठे हुए थे। हमारी गाड़ी आगे थी जबकि दूसरी गाड़ी हमारे पीछे थी। मैंने सबीहा खातून से दूसरी गाड़ी के बारे में पूछा कि क्या ये भी हमारे साथ लाहौर तक जाएंगी। सबीहा खातून बोली, नहीं, ये बस सियालकोट तक जाएंगे, इसके बाद ये वापस आ जाएंगे। मैं हम कहकर खामोश हो गया। सबीहा खातून और मेरे दरमियान 2-2.5 फुट का फासला था। अपनी आदत से मजबूर में बाहर की एक्टिविटी पर बुरी नजर रखे हुए था और सबीहा खातून से भी वक्ता फौकता कोई न कोई बात करे जा रहा था। 1 घंटे में हम सियालकोट से बाहर निकल चुके थे। सियालकोट की हुदूद क्रॉस करते ही आगे बैठे गार्ड को वायरलेस पर पीछे वाली गाड़ी ने क्लियरेंस का सिग्नल दिया। गार्ड पीछे मोड़कर सबीहा खातून से बोला, मैम पीछे वाली गाड़ी ने क्लियरेंस कॉल दे दी है। सबीहा खातून बोली, ओके, उनको वापस भेज दो। सबीहा खातून का हुक्म सुनकर गार्ड ने पीछे वाली गाड़ी को वापस जाने की हिदायत दे दी। कुछ ही देर में हम संबड़ियाल क्रॉस कर गए थे। सबीहा खातून से मेरी नॉर्मल बातें हो रही थीं। बातों के दौरान मैंने पूछा कि मैम लाहौर में किसी जगह कयाम करना है। सबीहा खातून बोली, डिफेंस में हमारा बंगला है, वहीं रुकेंगे। मैं हम कहते हुए सबीहा खातून शॉपिंग के बारे में बातें करने लगी कि किस तरह के सूट लेने हैं। कुछ देर बाद सियासत के मौजू पर बात शुरू हो गई। बातों के दौरान डस्का भी गुजर गया। अगला शहर मुरीद के आना था। डस्का और मुरीद के दरमियान रास्ता काफी सुनसान था, मतलब गिरदो नवा आबादी न होने के बराबर थी। कहीं कहीं 1-2 छोटे कस्बे आते थे। जब हमने कुटली नवाब इलाका क्रॉस किया तो हमारी गाड़ी को ब्लैक कलर की टोयोटा कार ने बड़ी स्पीड से क्रॉस किया। हालांकि हमारी गाड़ी की भी स्पीड काफी तेज थी, फिर भी इस गाड़ी ने इंतहाई स्पीड से क्रॉस किया। मैं बातों में मसरूफ था मगर फिर भी वो गाड़ी मेरी नजर में आ गई। गाड़ी के शीशे भी ब्लैक थे जिसकी वजह से उधर मुझे मशकूक लगी थी। मैंने आगे बैठे गार्ड को चूकना करते हुए कहा, आगे वाली गाड़ी मशकूक लग रही है, इस पर नजर रखना और पीछे बैठे गार्ड्स को भी चूकना कर दो। इसी दौरान ड्राइवर ने बैक मिरर में देखते हुए बोला, सर इसी तरह की गाड़ी एक हमारे पीछे भी है। ड्राइवर की बात सुनती ही मैंने दोनों पिस्टल निकाल कर लोड करते हुए गार्ड्स को कहा कि फौरी तौर पर पीछे बैठे गार्ड को पीछे वाली गाड़ी पर नजर रखने का कहा और ड्राइवर को हिदायत की कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। साथ ही मैंने सबीहा खातून की जानिब देखकर कहा, मैम प्लीज अब सीट के दरमियान में होकर बैठ जाएं। हालांकि अभी दोनों गाड़ियों की तरफ से कोई भी मशकूक हरकत सामने नहीं आई थी, फिर भी मैंने पूरी तैयारी करते हुए आने वाले हर मुश्किल लम्हे से निपटने की पोजीशन बना ली थी। सबीहा खातून पहले दरवाजे के पास बैठी हुई थी। मेरी बात सुनकर सबीहा खातून मेरी जानिब देखते हुए बोली, बच्चे तुम खामखा में परेशान हो रहे हो। कुछ भी नहीं है, मैंने कहा। मैम मेरी छठी हिस्स किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है, अब प्लीज इस बात को नॉर्मल मत लें। सबीहा खातून मुस्कुराते हुए मेरी रान पर हाथ रखकर हल्का सा दबाती हुई बोली, ओके, देखती हूँ तुम्हारी छठी हिस्स कितना काम करती है। मैं सबीहा खातून की जानिब देखकर संजीदा अंदाज में बोला, मैम जब भी मैं आपको कहूँ आप इसी वक्त सीट पर लेट जाना है। एक लम्हे की भी देर नहीं करनी। उस सबीहा खातून बोली, अगर तुम्हें वाकई किसी किस्म के खतरे की बो आ रही है तो गाड़ी कहीं रोक कर जहाजेब खान को इत्तला कर दो। मैंने कहा,
मैम अभी गाड़ी रोकने का मतलब खतरे को मौका देना है, और वैसे भी हम लाहौर के करीब पहुंच चुके हैं। मुरीद के कुछ ही फासले पर रह गया है। ऐसे में जहाजेब खान को इत्तला करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन तक हम पहुंचते 2 घंटे लग जाते हैं और हम इतनी देर तक एक जगह नहीं रुक सकते। आप घबराएं मत, मैं सब संभाल लूंगा। सबीहा खातून पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें कहीं से भी मैं घबराई हुई लग रही हूं। सबीहा खातून वाली पुरसुकून थी, मगर मेरी छठी हिस्स मुसलसल मुझे बड़े खतरे का सिग्नल दे रही थी, और सबीहा खातून मेरी बातों को मजाक में ले रही थी। इसलिए मैं सबीहा खातून की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और आगे जाती गाड़ी को देखने लग गया। इस दौरान मुझे एक और चीज़ ने खतरे का यकीन दिला दिया, क्योंकि ड्राइवर ने जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो आगे वाली गाड़ी की भी स्पीड बढ़ गई। संग रोड था, इसलिए आगे वाली गाड़ी को ये फायदा हो रहा था कि जब भी हमारी गाड़ी इसको क्रॉस करने की पोजीशन में होती तभी आगे से कोई ना कोई गाड़ी आ जाती, जिसकी वजह से थोड़ा वक्फा पड़ जाता। इसी इंक मिचौली में आगे एक कस्बा आ गया जहां पर ट्रैफिक का थोड़ा रश था, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करनी पड़ी। आगे वाली अभी तक हमारे आगे ही थी और पीछे वाली गाड़ी भी मखसूस फासला रखकर पीछे आ रही थी। कस्बे से निकलते ही थोड़ा आगे गए थे कि आगे की जानिब से कुछ फासले पर दाएं जानिब से अचानक ट्रक नमूदार हुआ, जो सड़क पर इस अंदाज में आ गया कि पूरी सड़क ब्लॉक हो गई, जिसके नतीजे में आगे वाली गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई। अब वो ट्रक जानबूझकर सड़क के दरमियान रोका गया था, और फिर इत्तेफाकना ये सीन बना था। बहरहाल सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने मखसूस अंदाज में ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा। ड्राइवर ने आगे वाली गाड़ी से मखसूस फासला रखकर गाड़ी की ब्रेक लगा दी। इसी दौरान आगे वाली गाड़ी ट्रक से थोड़े फासले पर रुक गई। मेरी पूरी तवज्जो आगे वाली गाड़ी पर थी। आगे वाली गाड़ी जैसे ही रुकी, अगले ही लम्हे इसके चारों दरवाजे खिलने लगे। गाड़ी के दरवाजों के खिलने का तरीका देखते ही मैंने अपने मखसूस अंदाज में चीखते हुए सबीहा खातून को सीट पर लेटने का कहा। मेरी अच्छी बात मुकम्मल हुई थी कि सामने वाली गाड़ी से फुर्ती के साथ 5 निकाब पोश उतरे। निकाब पोश अभी सीधा डर रहे थे कि मैंने गार्ड को फायर करने का कहते हुए सबीहा खातून के कंधों को पकड़कर इसे सीट पर गिराते हुए खुद भी सबीहा खातून के ऊपर इस अंदाज में लेट गया कि सबीहा खातून का पूरा वजूद मेरे वजूद के नीचे छप गया। अगले ही लम्हे तड़तड़ की आवाज़ों के साथ गाड़ी के शीशे टूटने लगे। साथ ही ड्राइवर की दिलदोज चीख सुनाई दी। इस वक्त मेरी अव्वल तरजीह सबीहा खातून को सिक्योर करने की थी। मैंने अभी तक ना तो फायर किया था और ना ही मुझे बाहर की पोजीशन के बारे में मालूम था कि बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जब फायरिंग की शिद्दत बढ़ने लगी और मुझे पीछे वाली सीट में गोलियां पैवस्त होते महसूस हुई, तो मैंने सबीहा खातून की कमर में हाथ डालकर इसे खिसकाते हुए सीट से नीचे गिराते हुए अगली पिछली सीट के दरमियान वाली जगह पर गाड़ी के फर्श पर गिराकर खुद भी सबीहा खातून के साथ ही इसके ऊपर गिर गया। हम दोनों की पोजीशन यूं बन गई थी कि सबीहा खातून का पूरा वजूद मेरे साथ चिपका हुआ था। मैंने सबीहा खातून के होंठों के करीब होंठ करके चीखते हुए कहा, मैम अपने यहाँ से हिलना नहीं है। मुझे ये देखकर हैरानगी भी हो रही थी कि अभी तक सबीहा खातून के चेहरे पर इत्मीनान था। इसकी हल्की सी चीख तब निकली थी जब मैंने इसे सीट से नीचे गाड़ी के फर्श पर गिराया था। इस दौरान भी मेरी पूरी कोशिश रही थी कि सबीहा खातून को नीचे गिरने की वजह से चोट ना लगे। नीचे गिरने और गोलियों की तड़तड़ के बावजूद सबीहा खातून के चेहरे पर इत्मीनान था, वरना इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई थी, जिस अंदाज में चल रही थी और कई हमारे ऊपर से गुजर कर सीट में लग रही थी, ऐसे दिल दहला देने वाले हालात में अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। फायरिंग अभी तक बदस्तूर हो रही थी। आगे बैठा गार्ड पहली फुर्सत में दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग चुका था, वरना ड्राइवर की तरह वो भी इसकी जद में आ जाता, जबकि ड्राइवर सीट पर ही बेजान बैठा हुआ था। कुछ देर तक मैं बदस्तूर सबीहा खातून के साथ चिपका रहा। जब मुझे लगा कि जारी है मगर अब उनका रुख गाड़ी की जानिब नहीं है, तो मैंने रिस्क लेते हुए बाहर निकलने का सोचा, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम इस पोजीशन में सेफ नहीं रह सकते थे। मैं सबीहा खातून की तरफ देखकर बोला, मैम हमारा ड्राइवर मर चुका है, आप इसी पोजीशन में लेटी रहें। मैं किसी तरह गाड़ी निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लग रहा है कि हमला आवरों की तादाद ज़्यादा है।
ये मुद्दा कहकर मैं सबीहा खातून से उठने लगा तो उसके ऊपर से सबीहा खातून की हरकत ने मुझे चौंका दिया। सबीहा खातून तड़प कर मेरी कमर के गिर्द बाजू डालकर मुझे बाजों में भरते हुए बोली, नहीं यासिर, तुम नहीं जाओगे, गार्ड्स हैं वो कंट्रोल करेंगे। मैंने कहा, मैम करें, इस वक्त सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, मुझे आपकी जान की फिक्र है, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। सबीहा खातून बोली, मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है बच्चे, तुम कुछ ना करो, सब्र करो। सबीहा खातून की बातें मुझे हैरान कर रही थीं, मगर इस वक्त मुझे सबीहा खातून के जज्बात को नज़रअंदाज करके वहां से निकलने के लिए एक्शन लेना पड़ना था। इसलिए मैं छटके के ऊपर होते हुए सबीहा खातून के बाजुओं का हिसार तोड़कर उठा और बोला, मैम सॉरी, अपनी जान से ज्यादा आपकी जान बचाना मेरे लिए जरूरी है। इससे पहले कि सबीहा खातून दोबारा मुझे पकड़ने की कोशिश करती, मैं इंतहाई फुर्ती से महारत के साथ अगली वाली दोनों सीटियों के दरमियान से निकलकर आगे पहुंचा। जब सीट पर बैठे ड्राइवर पर मेरी नजर पड़ी तो उसके माथे में और सीने में लगी हुई थी। इसने सीट बेल्ट पहन रखा था, जिसकी वजह से गोलियां लगने के बावजूद वो अभी तक सीट पर एक ही जगह बैठा हुआ था। मैंने निकाल कर सीट बेल्ट काट कर दरवाजा खोल के ड्राइवर के बेजान जिस्म को बाहर की जानिब धक्का देकर फुर्ती से दरवाजा बंद करते हुए उठ के आगे की जायजा लिया तो आगे सिर्फ कार खड़ी थी, जबकि ट्रक भी बदस्तूर रास्ता रोके हुए था। 3 हमला आवरों की लाशें कार के करीब ही पड़ी हुई थीं। आगे बैठा गार्ड भी गायब था, जबकि पीछे वाले गार्ड्स भी गाड़ी से उतर कर न जाने कहां पोजीशन संभाले हुए थे। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के झटके से बढ़ाते हुए ट्रक की जानिब गाड़ी भगा दी। तभी मुझे गाड़ी पर फायर लगते महसूस हुए, मगर मैं महारत से गाड़ी भगाते हुए ट्रक की जानिब गाड़ी ले जाकर ट्रक के आगे वाले हिस्से की तरफ से गाड़ी निकालने लगा तो एकदम से आगे निकला एक हमला आवर नमूदार हुआ। इसने गिन का रुख मेरी जानिब करके पलक झपकते पूरा बरस्ट फायर कर दिया। मुझे 2 फायर सीने पर लगे जो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सके, जबकि एक फायर मेरे बाजू को जख्मी करते हुए सीट में पैवस्त हो गया। मैंने इस सूरत हाल में भी गाड़ी का रुख नहीं बदला, क्योंकि यही वाहिद रास्ता मुझे नजर आया था जहां से मैं निकल सकता था। मैं गाड़ी सीधी हमला आवर पर चढ़ाते हुए इसे गाड़ी के नीचे रोंदते हुए आगे निकल गया। आगे दूर दूर तक किसी गाड़ी का नाम व निशान नहीं था। शायद फायरिंग की वजह से सारी ट्रैफिक गायब थी, जिसकी वजह से मैंने फुल एक्सेलरेटर दबाते हुए मुमकिना स्पीड इख्तियार कर ली। गाड़ी भगाने हुए मैं सबीहा खातून की खैरियत भी मालूम कर रहा था। गाड़ी की विंड स्क्रीन और बैक स्क्रीन टूट चुकी थी, जिसकी वजह से सामने से हुआ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। मैं बैक मिरर में देखते हुए पीछे की पोजीशन भी चेक कर रहा था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। मैं भी थोड़ा ही आगे गया था कि सामने पुलिस की गाड़ियां आती दिखाई दी। इलियट की 2 गाड़ियां थीं, जबकि पीछे पुलिस की मखसूस गाड़ियां थीं। गाड़ियों को देखकर मैं समझ गया कि पुलिस को इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच रही है। इस वक्त मेरी गाड़ी की हालत भी मशकूक थी, इसलिए मैंने पुलिस की गाड़ियों को देखते हुए गाड़ी की हेडलाइट को मखसूस अंदाज में जलाकर बाईं जानिब का इंडिकेटर चलाकर गाड़ी बाईं जानिब सड़क से उतार कर रोक दी, क्योंकि अगर मैं ऐसा न करता तो पुलिस मुझ पर फायर खोल सकती थी। इलियट फोर्स की एक गाड़ी मेरी गाड़ी से मखसूस फासले पर रुकी और अगले ही लम्हे इलियट फोर्स के जवान अपने मखसूस अंदाज में गाड़ी से छलांगे लगाकर गन्नों का रुख मेरी जानिब करते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ने लगे, जबकि इलियट के एक जवान ने दूसरी गाड़ियों को आगे जाने का इशारा किया। इलियट के जवानों को देखते ही मैंने दोनों हाथ ऊपर करते हुए सरेंडर करने का मखसूस इशारा किया। अगले लम्हे इलियट के जवानों ने मखसूस अंदाज में गाड़ी का घेराव करते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। मैं हाथ ऊपर किए सबीहा खातून को मुखातिब करते हुए बोला, मैम उठ जाएं, पुलिस एहलकार पहुंच गए हैं। इतने में एक जवान ने दरवाजा खोल कर गिन का रुख मेरी जानिब करते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा, हाथ ऊपर करके गाड़ी से बाहर आ जाओ, अगर जरा सी भी कोई चलिक्की दिखाई तो शूट कर दूंगा। मैं गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, सर हम पर हमला हुआ है, मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ लेडीज खातून है, हम ना जान बचाकर वहां से। इसी दौरान पीछे वाले दरवाजे के पास खड़े दूसरे जवान ने सबीहा खातून को उठते देखा तो उसने मुझ पर गिन तानी हुई कहा, पीछे लेडीज मौजूद है। मैं गाड़ी के दूसरी जानिब मौजूद इलियट फोर्स के जवानों ने दूसरी जानिब से गाड़ी को चेक करना शुरू कर दिया।
मैं हाथ ऊपर किए गाड़ी से बाहर आ चुका था। इस सब के दौरान सबीहा खातून गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर चादर को जिस्म पर दुरुस्त करते हुए इलियट जवान को बोली, तुम लोग हम पर क्यों असलहा तान कर खड़े हो? और ये बच्चा मेरे साथ है, इसके तुमने हाथ ऊपर क्यों करवाए हुए हैं? जवान बोला, मैडम जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाती प्लीज अब खामोशी से खड़ी रहें। इलियट फोर्स के जवान की बात सुनकर सबीहा खातून गुस्से से बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अभी अभी हम पर हमला हुआ है और तुम हमला आवरों की तरफ जाने की बजाय हम पर बंदूकें ताने खड़े हो। ये कहते हुए सबीहा खातून ने अपना तारुफ करवा दिया कि वो शरीन है। तारुफ करवाते ही सबीहा खातून बोली, अब तसल्ली हो गई है तो बताओ, वरना यहाँ के एसपी को कॉल करके अभी के अभी इसे यहाँ बुलाओ। अजीब तमाशा लगाया है तुम लोगों ने। एक तो सबीहा खातून की पर्सनालिटी मुंह बोलता सबूत थी कि वो वाकई कोई बड़ी शख्सियत है। दूसरा इसका मखसूस लहजा और सीधा एसपी को निकाल कर इसे यहाँ बुलाने का कहना। इलियट फोर्स के जवानों को चंद लम्हों में सारी सूरत हाल समझ में आ गई थी। इलियट फोर्स के जवान ने नरम लहजा इख्तियार करते हुए अपने साथियों को गन्स नीचे करने का कहते हुए मुझे भी हाथ नीचे करने का कहते हुए सबीहा खातून की जानिब देखकर बोला, मैम सॉरी मैडम, हमने जो भी किया वो हमारी ड्यूटी में शामिल था। अगर हमें पहले आपके बारे में मालूम होता तो ये सब करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। बाकी अब ठीक है, कहीं आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? सबीहा खातून अपने मखसूस लहजे में बोली, मैं ठीक हूं, तुम लोग इस तरफ जाओ। वहां मेरे गार्ड्स हमला आवरों के साथ डिफेंस फायरिंग में मसरूफ हुए हैं। इलियट जवान बोला, मैडम इस तरफ हमारी गाड़ियां जा चुकी हैं। ये कहकर जवान अपने साथियों की जानिब देखकर एक साथी को वहां रहने का कहते हुए बाकी साथियों को हादसे वाली जगह पर पहुंचने का कहने लगा। इसकी बात सुनते ही एक जवान वहीं रुक गया जिसने दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर निकलने का कहा था, और दूसरा जवान वो खुद था जो सबीहा खातून से हम कलाम था। जबकि बाकी के जवान गाड़ी में बैठकर हादसे वाली जगह की तरफ रवाना हो गए। मैंने जब हाथ नीचे किए तो मुझे हाथ की उंगलियों पर गीलापन महसूस होने लगा। मैंने हाथ की तरफ देखा तो मेरा हाथ खून से सुर्ख हो चुका था। मुझे इतना तो मालूम था कि गोली मेरा बाजू जख्मी है, इसलिए खून निकलने की वजह भी मुझे मालूम हो गई थी। मैं खून आलूद हाथ को सबीहा खातून की नज़रों से छुपाकर सबीहा खातून की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैम अब ठीक हैं? सबीहा खातून बोली, हाँ बच्चे मैं ठीक हूँ। अगले ही लम्हे सबीहा खातून की मेरे बाजू पर नज़र पड़ी जहाँ से कपड़ा भी फटा हुआ था और खून से गीला भी हुआ था। मोटर का कार डार्क ब्लैक होने की वजह से बाजू के कपड़े पर खून का रंग तो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर कपड़े में सुराख और गीलापन देखा जा सकता था। अलबत्ता मेरे सीने पर जहां गोलियां लगी थीं वहां भी कमीज में सुराख थे, मगर वहां पर खून नहीं था। सबीहा खातून तड़प कर आगे बढ़कर मेरा खून आलूद हाथ पकड़कर बोली, ओ माय गॉड बच्चे ये क्या हो गया? तुम्हें गोली लगी है और तुम आराम से खड़े मेरी खैरियत पूछ रहे हो? ये कहकर सबीहा खातून इलियट के जवान की तरफ देखकर बोली, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करें। सबीहा खातून को पहली बार इस कदर परेशानी में देख रहा था। हालांकि कुछ देर कबल वो जिस खतरनाक पोजीशन में थी तब भी इसके चेहरे पर रत्ती बराबर परेशानी नहीं थी, जो उसके दलेर होने का वाज़े सबूत था। इस वक्त का ड्राइवर जान से हाथ धो बैठा था। गार्ड्स में कोई जिंदा बचा भी था या नहीं ये भी मालूम नहीं था। ये सब जानते हुए भी इसके चेहरे पर इत्मीनान था, और वो अपने गार्ड्स की फिक्र करने की बजाय मेरे लिए ऐसी फिक्रमंद थी जैसे मेरे साथ इसका खास रिश्ता हो। इसका सबूत ये था कि अभी जब इसकी नज़र मेरे जख्मी बाजू और खून आलूद हाथ पर पड़ी तो एक लम्हे में परेशानी से इसका बुरा हाल हो गया था। सबीहा खातून को परेशान देखकर मैंने कहा, मैम मुझे कुछ नहीं हुआ, गोली बाजू को छू कर गुजर गई थी जिसकी वजह से बस हल्का सा जख्म है, इसके लिए एम्बुलेंस मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। सबीहा खातून बोली, खामोश रहो, खबरदार जो अब एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला। तुम्हें मना भी किया था कि वहीं लेटे रहो, मगर तुम्हें तो मेरी जान बचाने की फिक्र पड़ी हुई थी। ये कहते हुए सबीहा खातून ने चादर के नीचे सर पर लिए अपने शिफोन के दोपट्टे का प्लो पकड़कर मेरे देखते ही देखते काफ़ी सारा कपड़ा फाड़कर बाजू पर जख्म के ऊपर वाले हिस्से पर बांधना शुरू कर दिया। जख्म अभी ताज़ा था इसलिए मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था, मगर जिस स्पीड से खून निकल रहा था इससे लग रहा था कि गोली गोश्त को चीरती हुई गुजरी है। हादसे वाली जगह से हम काफ़ी आगे आकर रुके थे।
پھر بھی گولیوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ مجھے اپنے گارڈز کی بھی فکر تھی کہ کہیں پولیس ان پر فائرنگ نہ کر دے، مگر یہ بھی تسلی تھی کہ ایک تو انہوں نے سیکورٹی گارڈز کا مخصوص لباس پہن رکھا تھا، دوسرا وہ تربیت یافتہ تھے، اس لیے وہ پولیس کو مخصوص اشاروں سے اپنا اور حملہ آوروں کا فرق سمجھا سکتے تھے۔ ایلیٹ فورس کا جوان میرے بازو کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، سر آپ کا زخم کافی گہرا ہے، خون بھی تسلسل سے بہہ رہا ہے، آپ کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ایمبولینس نہیں منگوانا چاہتے تو بہتر ہے، آپ کو ہم ہسپتال لے چلتے ہیں۔ ویسے بھی ایمبولینس کے آنے سے پہلے ہم خود ہسپتال پہنچ جائیں گے کیونکہ یہاں قریب ہی ہسپتال ہے۔ میں نے کہا، نہیں سر میں ٹھیک ہوں، ابھی ہمارے ساتھی ادھر حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں جبکہ ہمارا ڈرائیور اڑ چکا ہے، اس کی لاش بھی ادھر ہی پڑی ہے، مجھے اندر دیکھنا ہے۔ سبیحہ خاتون بولی، اتنی فکر مند نہ ہو، پولیس وہاں پہنچ چکی ہے، اب صورتحال کنٹرول میں ہو جائے گی، تم ہسپتال چل لو، پہلے تمہاری ٹریٹمنٹ ضروری ہے، ویسے بھی جب تک گارڈز نہیں آ جاتے ہم نہیں ہی جائیں گے، اور ڈرائیور کی لاش کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ یہ کہہ کر سبیحہ خاتون ایلیٹ کے جوان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، بچے کیا تم ہسپتال تک ہماری ہیلپ کر سکتے ہو؟ جوان بولا، جی میڈم آف کورس، ویسے بھی جب تک SHO صاحب آپ کی جانے کی اجازت نہیں دیں گے تب تک آپ نہیں جا سکتے۔ سبیحہ خاتون غصے میں کچھ کہتی بات بدل کر بولی، میں نے تمہیں اپنا تعارف بھی کروایا ہے کہ میں کون ہوں، باقی ابھی ہمیں ہسپتال پہنچاؤ، باقی کے معاملات وہیں جا کر دیکھیں گے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ سبیحہ خاتون خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، یاسر بچے تم جلدی گاڑی میں بیٹھو اور تم لوگ بھی پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، میم اب رہنے دے، میں گاڑی ڈرائیو کر لیتا ہوں، مگر سبیحہ خاتون نے غصے میں مجھے ہری گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ ایلیٹ کا ایک جوان آگے سبیحہ خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا جبکہ دوسرا جوان میرے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ سبیحہ خاتون کو یقیناً ڈرائیونگ آتی نہیں، اس لیے اس نے گاڑی خود چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سبیحہ خاتون نے تجربہ کار ڈرائیور کی طرح جھٹکے سے گاڑی بڑھاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ میرے ساتھ بیٹھا ایلیٹ فورس کا جوان مجھ سے حادثے کے بارے میں پوچھنے لگ گیا، میں مختصر کر کے اسے حملہ آوروں کے بارے میں بتانے لگ گیا۔ میں نے اسے یہی ظاہر کیا کہ سیاسی دشمنی کی وجہ سے ہم پر حملہ ہوا ہے، کیونکہ اسے اصل بات نہیں بتا سکتا تھا کہ سبیحہ خاتون کو خوب منت مارنا چاہتا ہے۔ 10 ہی منٹ میں ہم مرید کے پہنچ میں آ گئے۔ ایلیٹ فورس کا جوان سبیحہ خاتون کو گائیڈ کرے جا رہا تھا۔ اسی دوران سامنے سے تیزی کے ساتھ 3-4 ایمبولینس آتی دکھائی دیں۔ چند لمحوں میں وہ ہماری گاڑی کے پاس سے گزر گئی تھی۔ ان کا ایمرجنسی بوزر بتا رہا تھا کہ وہ کسی حادثے کی جگہ پر جا رہی ہے، جس کی تصدیق میرے ساتھ بیٹھے جوان نے کر دی تھی کہ لگتا ہے حالات کنٹرول میں کر دیے گئے ہیں اور یہ گاڑیاں اسی جگہ جا رہی ہیں جہاں آپ لوگوں پر حملہ ہوا تھا۔ جوان کی بات سن کر ایک طرف میں نے شکر ادا کیا جبکہ دوسری جانب دل سے دعائیں کرنے لگا کہ گارڈز زندہ سلامت ہوں۔ بیچارہ ڈرائیور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، مگر گارڈز کن حالات میں تھے، ان کے بارے میں مجھے فکر ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم ہسپتال میں داخل ہو کر ایمرجنسی کے سامنے موجود تھے۔ گاڑی رکتے ہی ایلیٹ کے جوان نیچے اترے، میں بھی ان کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ سبیحہ خاتون نیچے اتر کر چادر سنبھالتے ہوئے ہمارے ساتھ ایمرجنسی کی جانب جانے لگی۔ ہمارے ساتھ ایلیٹ فورس کے جوان ہونے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر ہماری ڈاکٹرز کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ہسپتال میں موجود لوگ بھی ہماری جانب متوجہ تھے۔ ویسے بھی ہسپتال کی انتظامیہ کو الرٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہسپتال میں ہائی الرٹ کیا گیا ہے، کیونکہ جو ایمبولینس گئی تھی وہ اسی ہسپتال گئی تھی۔ بازو پر کپڑا باندھنے کی وجہ سے خون پہلے ہی رک چکا تھا۔ مجھے ٹریٹمنٹ روم میں لے جایا گیا۔ ایلیٹ کے جوان نے ڈاکٹر کو ساری صورتحال آگاہ کر دی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے گولی لگنے کے مسئلے پر پولیس رپورٹ طلب نہیں کی اور فوری طور پر میری ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ سبیحہ خاتون ضد کرنے لگی کہ وہ میرے قریب کھڑی رہے گی ورنہ ان کو باہر جانے کا کہا گیا تھا۔ نرس نے بازو کے کپڑے کو کاٹ کر زخم ننگا کرنے کے بعد جب بازو پر باندھا ہوا کپڑا کھولا تو ایک دم سے زخم میں سے تیزی کے ساتھ خون نکلنے لگ گیا۔ سبیحہ خاتون پہلے ہی میرا زخم دیکھ کر پریشان کھڑی تھی۔
جب اس نے خون نکلتے دیکھا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں نرس کو